Assalamualaikum and very warm good morning to students of class 4th. Students, how are you all? Hope you all are fine and also taking care of your health. Students, today we are going to read chapter number 10, that is Hututu class 4th EVS. Students, by hearing the name of the chapter, you understand, आपको समझ में आ गया होगा कि हम कौन से चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं. We are going to read about the name game that is called कबड्डी. कबड्डी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. आपको स्क्रीन में भी देख के समझ में आ रहा होगा ना, गर्ल्स आपस में खेल रही हैं तो कौन सा गेम खेल रही है. दे आर प्लेइंग द कबड्डी गेम. Now first of all we will read, so open your textbook and take the pencil also with you. And I am going to remind you one thing, that is that in this chapter is just for your practice work. ये आपके सिर्फ practice के लिए. You need not have to worried about the PDF and notes because this chapter is not going to come in the exam. It is just for your self-study, just for your practice. Any chapter related to this chapter comes in the next class, so it will be easy for you. Okay, students? So now we will start the reading work. Open your textbook and keep the finger where I am reading and also read after me. Hututu, hututu, hututu. Out, out, all the girls on one side shouted loudly. Hututu, 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 hold from here. Hututu, hold from the leg. The leg, hold her leg. Hututu, hututu, Vasudha, you come here, you hold her from here. Hey, make sure that Shamla hand does not touch the line. Hold her hand. Hututu, hututu, oh, she has touched it. Out, 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 all out. Ho, 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 your team is all out. Now here the girls are talking with each other. वो एक दूसरे को गाइड कर रही हैं. हु तू 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 भी चिल्ला रही हैं. और वो क्या बोल रही हैं? श्यामला का पैर पकड़ो, उसको वसुधा श्यामला का पैर पकड़ो, उसके कंधा पकड़ो, उसका वेस्ट पकड़ो, वो बीच जो सेंटर लाइन है वो उसको टच ना करने पाए. और वो क्या होता है, श्यामला जो है वो सेंटर लाइन को टच कर लेती है. सो ऑल हैव गम आउट. सब जिन लोगों ने उसको पकड़ रखा था वो सब आउट हो गए. उनकी पूरी टीम आउट हो गई. ओके स्टूडेंट्स, नाउ we will go on the next page, that is page number 78. Now here you can see in this page what you are seeing, that the girls, they are playing and they are holding the Shamla. What are these girls doing? They are shouting out. It is clear that they are playing a game. अभी आप ये girls क्या कर रही हैं? तो वो आउट आउट चिल्ला रही हैं और उससे ये क्लियर होता है कि वो क्या कर रही हैं, वो कोई गेम खेल रही है. What do you call this game? आप इस गेम को क्या बुलाते हो? चिडू गुडू, हुतुतु, छू, किट किट, हुडुडू और कबड्डी और समथिंग एल्स. आप इस गेम को किस नाम से जानते हो? तो हम इस गेम को किस नाम से जानते हैं? वी आर नोइंग दिस गेम बाय द नेम ऑफ कबड्डी. हम कबड्डी के नाम से जानते हैं. बाकी दूसरे प्लेसेस में इसको कौन से नाम से बोला जाता है? चिडू गुडू बोला जाता है, हुतुतु, छू, किट किट, हाडुडू, इन सब नामों से जाना जाता है. When 6 girls surrounded Shamla and caught her, everyone thought that she was out. Somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by the waist. But Shamla was not the one to give up. She dragged herself and managed to touch the line in the center. अभी जो 6 girls थी उन लोगों ने क्या किया? श्यामला को कस के पकड़ लिया. किसी ने उसका और उन लोगों ने क्या सोचा कि everyone thought that she was out. सबने क्या सोच लिया था कि अब ये आउट हो जाएगी. तो किसी ने उसके लेग्स पकड़े, किसी ने उसके आर्म्स पकड़े. आप स्क्रीन में आपको जो पिक्चर दिख रही है उसमें आप देख सकते हैं ना, गर्ल्स ने उसके पैर, किसी ने पैर पकड़ा है, किसी ने उसके हाथ पकड़े हुए हैं, किसी ने उसकी कमर पकड़ रखी है. पर जो श्यामला थी वो गिव अप नहीं कर रही थी, वो हारना नहीं चाहती थी. तो उसने ड्रैग किया मतलब वो जमीन पे घसीट के और आगे बढ़ी. उसने जो सेंटर लाइन थी उसको टच किया. आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना, बीच में एक लाइन दिख रही है, वो लाइन को उसने क्या किया? टच कर लिया. और वो क्या हुआ? वो जीत गई, वो आउट नहीं हुई. पर जो 6 गर्ल्स ने उसको पकड़ रखा था, दे ऑल वेर आउट. अब कबड्डी का ये रूल होता है स्टूडेंट कि अगर आपने जो अपोजिट टीम का जो भी आपके सामने खेलने आता है ना, अगर वो उसको आप जितने भी लोगों ने पकड़ रखा, अपोजिट टीम के जितने भी प्लेयर्स ने उसको पकड़ रखा है, और अगर उसने सेंटर लाइन को टच कर लिया तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? दे ऑल आर आउट. When Shamla touched the line, all the girls of the opposite team were holding her, so all of them got out, but
Rosie argued that Shamla had taken a breath in between, so the team was not out. Shamla insisted that this was not true. She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? There was a big argument. Finally, Shamla won. अब श्यामला ने क्या किया? सेंटर लाइन को टच कर लिया, तो जितने भी अपोजिट टीम की गर्ल्स थी वो सब क्या हो गई? आउट हो गई हो। पर रोजी ने आर्ग्यू किया, जो अपोजिट टीम में जो गर्ल थी ना रोजी, उसने आर्ग्यू किया और क्या बोला कि श्यामला ने बीच में ब्रीथ ले ली थी। अभी कबड्डी में क्या होता है, आप जब तक आप सांस को रोकोगे नहीं, अपनी सांस को छोड़ोगे नहीं, तब तक आप क्या कर रहे हो? यू आर नॉट आउट। आप सांस को रोक के रखोगे तब तक आप आउट नहीं होते, और जैसे ही आपने सांस ले ली मतलब आप आउट हो जाओगे। तो श्यामला ने क्या बोला? नो इट इज़ नॉट ट्रू, शी इज़ टेलिंग लाइज। एंड वॉट शी टोल्ड दैट इफ़ आई हैव टेकन अ ब्रेथ, अगर मैंने सांस ले ली थी तो सारी गर्ल्स ने मुझे होल्ड करके क्यों रखा हुआ था? और उनके बीच में बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हुई, मतलब बहस हुई उनके बीच में, और फाइनली क्या हुआ? श्यामला जीत गई। श्यामला ने कबड्डी का गेम जीत लिया था। नाउ स्टूडेंट्स, सी ऑन द नेक्स्ट पेज द गेम ऑफ कबड्डी. सो दिस इज व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक. Pulling and pushing, screaming and shouting, dragging and falling on the ground. It is a rough game, yet it has many rules. अभी ये गेम कैसा है? कबड्डी का गेम ऐसा ही होता है. पुशिंग एंड पुलिंग. पुशिंग मीन्स धक्का मारना, पुलिंग मतलब खींचना, स्क्रीमिंग मीन्स जोर से चीखना, शाउटिंग मीन्स हल्ला करना, ड्रैगिंग मतलब अपने आप को जमीन में घसीटना, फॉलिंग ऑन द ग्राउंड मतलब ग्राउंड पे गिर जाना, एंड इट इज़ अ रफ गेम. और ये कौन सा गेम है? ये एक रफ गेम है जो कि जिसमें हम मतलब हमारे हाथ पैर में चोट लग जाती है, और पर तो भी इसमें बहुत सारे रूल्स है, इसके बगैर रूल्स के इसको नहीं खेला जाता है. इट इज़ लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, होल्डिंग योर ब्रीथ while running and continuously saying kabaddi kabaddi, and also trying to touch the players of the opposite team. So many things to do in kabaddi. You can do this as long as you can hold your breath. अभी ये गेम में बहुत मज़ा होता है, एक्सरसाइज होती है हमारे शरीर की, हमें सांस रोक लेते हैं, हम सांस रोक के दौड़ते रहते हैं, जो कि एक तरीके की एक्सरसाइज है. और कबड्डी कबड्डी बोलना है, और प्लेयर्स को टच करना, अपोजिट टीम में जो प्लेयर्स होते हैं उनको टच करना है, सांस को रोकना है, तो ये भी एक तरीके की एक्सरसाइज है. सो मैनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती. कैसे एक्सरसाइज होती? देखो आप, हम हाथ और पैर दोनों को चला के दौड़ते हैं, फिर सांस को रोक के हम कबड्डी कबड्डी बोलते हैं, फिर हमको दूसरे टीम से जो हमारे पास आता है उसको पकड़ना है. सो दिस इज ऑल, आवर होल बॉडी इज डूइंग अ एक्सरसाइज, पूरे बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है. यू नीड टू यूज बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम. अब हमें इस गेम में क्या करना होता है? हमारा जो बॉडी होता है, पूरा बॉडी, और हमारा जो दिमाग होता है, उसको दोनों को हमें यूज करना होता है. यू हैव टू यूज योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स. और हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होती है, काहे के लिए? प्लेयर्स को स्टॉप करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, प्लेयर को अपनी तरफ पकड़े रखने के लिए और उसको रोकने के लिए. एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड. और उसके बाद आपको उसी टाइम पे ऐसा भी सोचना है सेम टाइम पे कि हाउ यू विल गोइंग टू एंटर द अदर साइड. मीन्स आप जो लाइन के उस तरफ का जो साइड है उसमें आप कैसे एंटर करोगे. यू हैव टू डिसाइड whom to touch quickly and come back, and at the same time you have to think कि मुझे किसको टच करके और तुरंत अपने साइड में वापस आना है. इफ़ यू गेट कॉट देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर. और अगर आप पकड़ गए हो, आपको अपोजिट टीम के प्लेयर्स ने पकड़ लिया है, तो आपको वो भी सोचना है कि आपको जो सेंटर लाइन दी गई है, जो लाइन बनाई गई है, उसको कैसे टच करना है. सो स्टूडेंट्स, नाउ यू कम टू अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आया ना कि कैसे कबड्डी का गेम खेला जाता है, कैसे एक ही टाइम पे बॉडी को और माइंड को दोनों को चलाना पड़ता है. हमें ये भी सोचना है कि सामने वाले टीम में से हम कितने मेंबर्स को आउट करके आ सकते हैं, हमें वापस भी आना है, और अगर हमें पकड़ लिया गया है तो हमें वो सेंटर लाइन को कैसे टच करना है. ओके स्टूडेंट, नाउ सी ऑन द नेक्स्ट पेज. नाउ हियर आर द सम क्वेश्चंस विच आई हैव डन फॉर यू. मैंने आपके लिए कर दिया है. नाउ हियर यू हैव टू यूज योर पेंसिल and you have to write the name of the game. In some games, it is very important to touch the player. For example, in the game of Kho-Kho, you get out when someone touches you.
You also get your turn by someone's touch. Name some games in which it is very important to touch the players. अभी आपको जैसे खो खो होता है, खो खो गेम आप खेलते हो ना, तो उसमें क्या होता है, पीछे से एक दूसरे को टच करना पड़ता है. टच करने के बाद में आपको क्या करना है, आप जब टच, दूसरा आपको आके टच करेगा तो ही आप उठोगे. तो अब आपको ऐसे दूसरे गेम्स बताना है जिसमें टच करके गेम को आगे बढ़ाया जा सकता है. सो द फर्स्ट वन इज हाइड एंड सीक, second is kabaddi, and third is pittu. These are all the name of the games. Now the second question is, in kabaddi the entire team was out because Shamla had touched the line. What are some other games in which the central line is very important? अभी कबड्डी में entire team was out, श्यामला ने पूरी टीम को आउट कर दिया. कैसे आउट किया, उसने जो सेंट्रल लाइन थी उसको टच कर लिया. तो what are some other games in which द सेंट्रल लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ऐसे और कौन से गेम्स हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं जिसमें जो सेंट्रल लाइन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है. सो द नेम ऑफ द गेम इज पिट्ठू, फुटबॉल, बैडमिंटन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द गेम्स इन विच बिसाइड द प्लेयर यू हैव टू टच समथिंग और कलर. अभी कुछ ऐसे गेम्स के नाम अब बताओ जिसमें प्लेयर्स को हमें टच करना, प्लेयर्स है, यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर्स. आपको ऐसा कोई गेम है जिसमें आपको कोई सामने वाला ऐसा बोलेगा पिंक कलर, तो आपको दौड़ के जाके जहाँ भी किसी ने पिंक कलर पहना है या वॉल पे पिंक कलर किया हुआ है या किसी के हाथ में पिंक कलर की कोई भी चीज़ है तो उसको आपको टच करनी है. या तो ऐसे गेम्स के आपको नाम लिखने हैं. सो 2 गेम्स आई हैव रिटन, दैट इज टच द कलर एंड द सेकेंड इज प्लांट फेरी. थर्ड you have to write by your own. तीसरा आपको खुद से लिखना है. Okay student, so this was the end of the part 1 of this chapter. In the next lecture we are going to meet with the second part of this chapter. So students, now I want to ask you few questions in this. The first question is, what is the name of the girl who has won the kabaddi match? आप उस गर्ल का नाम बताओ जिसने कबड्डी का मैच जीत लिया था. Okay student, now tell me how many girls have holded the Shamla. कितनी गर्ल्स ने श्यामला को होल्ड करके रखा था, उसका नंबर आपको बताना है. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल हु हैज won the kabaddi match? And the second question is, how many girls have holded Shamla? So you have to write the number. How many means how many they were in the number. Okay student, so hope you all have understand this chapter up till here very nicely. आपको अच्छे से समझ में आया होगा. And the students, watch the video again and again as it is helpful for you in the reading and for your practice work also. So up till then, take care of your health, stay at home, watch the videos again and again. It will be very helpful for you. And Allah Hafiz. Thank you. Once again I am reminding you that this chapter is just for your practice. Okay students, ये आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है. आपको इसके PDF और नोट्स के लिए वरी नहीं करना है. Okay student, and once again I am reminding you that watch the videos बेटा. आपको वीडियो वॉच करना है. आप टेक्स्ट बुक ओपन करके वीडियो वॉच करोगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा. आपको रीडिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अच्छे से सब कुछ समझ में भी आ जाएगा कि चैप्टर में मैंने आपको क्या पढ़ाया है. ओके स्टूडेंट, सो आई एम होपिंग दैट यू आर गोइंग टू फॉलो माय सजेशंस विच एवर आई एम गिविंग यू. आप मेरे सजेशंस को फॉलो करोगे और आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके और वीडियोस को ओपन करके उसको वॉच करोगे. ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज द एंड ऑफ द पार्ट 1 एंड I am hoping that you are going to give me the answer also, and I am very much happy and I am very much appreciated that Choksi, Hamza Choksi is always giving me the answer. He is always active in watching the videos and also giving the answers. Very good Hamza, because I appreciate you that you are very much punctual in seeing the videos, and also you are very punctual in giving the answers also. Very nice Hamza. I am delightful that you are always punctual in your work. Okay, again Allah Hafiz. Take care of your health. Have a nice day. Thank you.